हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। May 24, we have to crack it, guys. It's not as difficult. Coming back to the topic, today we are going to discuss chapter 15 of Advanced Financial Management, Startup Finance. The weightage is 2 to 5%, but I am sure you will get a 5% or a good question from this chapter. It's a very theoretical chapter, but very interesting, engaging, and as a good finance professional, we also know this, know the concepts related to startup financing. In my opinion, I think 60-70% of the chapter you already know because of the buzz created around startups, the Shark Tank show, and various unicorn natures, various success stories, etc. So, what would be our learning objective of this topic? Limiting ourselves to the preparation of the topic with respect to our studies. So, what's a startup? Concept of unicorn. What is a good presentation? What shall be included in a good pitch presentation? Sources of funding, startup initiatives of Government of India, succession planning in business. So I think मटेरियल के लास्ट में अपने दो ही मेन क्वेश्चन बनते हैं. What are the salient or good features of a pitch presentation? And explain various innovative financing options, like angel investor, venture capitalist, multiple other type of financing which are not only available for the startup but all other type of businesses. But here it's more, the explanations are given more focused towards a startup finance. What is a startup? It's an entrepreneurial venture. दो तीन चार लोगों ने हार्ड वर्कर इनोवेटिव दिमाग वाले बंदों ने कुछ काम स्टार्ट किया. अर्ली स्टेज ऑफ ऑपरेशन, रिजॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम. अगर किसी ने अपना एक किराना स्टोर खोल ली, हर दूसरा बंदा आजकल प्रॉपर्टी एजेंट होता है, कुछ बिल्डर्स होते हैं. There are many people who are in the agriculture space. They are not startups. So startups, for the definitions of the normal startup itself, is resolving a real life problem. एग्रीकल्चर में कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई, दैट कैन बी कॉल्ड स्टार्टअप. कोई नए तरीके का टूल बना दिया, वो स्टार्टअप हो सकता है. सो समथिंग न्यू, समथिंग इनोवेटिव हैज टू बी डन for the government purposes, because government has to also promote startups. Government has to promote everything, but more particularly the startups. So there are various tax advantages which we can discuss during our tax sessions. Or I have captured a couple of 3-4 main salient features. Having said, to qualify for those benefit, incentives, schemes, etc., what is a startup as per the definition of Government of India, Department of Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT. It's a company 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं हो सकती. You cannot be a startup for 10 years. आपको 10 साल का टाइम मिला है. कंपनी किसी भी फॉर्म में क्रिएट की जा सकती है. इट मे बी अ कंपनी, इट मे बी पार्टनरशिप, इट मे बी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. It cannot be an individual. Individual cannot be a startup. He has to convert in one or other forms of company type. Annual turnover 100 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकती. If आपका सपोज आपने 2017 में लाइसेंस लिया, अब 26 इनकॉर्पोरेट की कंपनी, अब 26 तक एलिजिबल थे स्टार्टअप कहलाने के लिए, बट इन बिटवीन आपका टर्नओवर 100 करोड़ क्रॉस हो गया. You are a startup, but you are not a startup for the government schemes now. You will lose the benefits of the government schemes, etc. Entity shall primarily be working towards innovation, some processes which are scalable, high potential of employment generation, wealth creation, solving real life challenges, etc. It shall not be a repeat task which other peoples have already been doing in past or something like this. I hope you understand. And it will not be created for the tax advantage purposes, like चार दोस्त थे, चार भाई थे, एक छोटा सा बिजनेस अलग करके वो करना, that shall not be the it shall be established, because government is also, guys, try to understand, government is also trying to support you, support the startups. Tax planning or any planning is good thing, but trying to run around
the procedures and harm the revenue, tax revenues or other type of government incentives will disqualify you from the startups definition. So as I was saying, a straight away clear 3-year टैक्स हॉलीडे. आप कहेंगे सर 3 साल तो कोई प्रॉफिट ही होता है, बहुत सारी कंपनियों को पहले साल में भी प्रॉफिट हो सकता है. स्टार्टअप एज ए डेफिनेशंस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स फॉर इनिशियल 3 years. आप इनकी इन्वेस्टमेंट अगर कोई इसमें कर रहा है तो वो एफएमवी से ज़्यादा कर सकता है टैक्स एडवांटेज. टैक्स का कोई टैक्स शील्ड अवेलेबल है. सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड और लॉसेज जनरली भी बिजनेस में अलाउ होते हैं. स्टार्टअप में विद सर्टेन एडिशनल एडवांटेजेस दे आर अलाउड. And there can be various government के अटल इनोवेशन मिशन, various innovative schemes जहाँ पर आपको फंडिंग्स एटसेट्रा आसानी से मिल जाती है. So that's broadly covers the startups. इतना कोई difficult नहीं है. I don't think it can be a question what is a startup. That doesn't qualify to be a CA final question. But it was just for and this above topic is not even in the study material. I have just clarified it for your understanding perspective. Now we do keep on hearing the word unicorn. What is a unicorn? So unicorn is a startup which has achieved the equity valuation of $1 billion. 1 बिलियन होता है 100 करोड़ INR में. $1 बिलियन हो जाता है इक्विवेलेंट टू अराउंड 8300 करोड़. आजकल डॉलर INR का रेट 83 चल रहा है. 80 चलता तो 8000 करोड़ हो जाता. Unicorn is a mythical term, like it's a type of unique animal which is like horse, which has lion's tail. It's a symbol of some strength, some sort of perseverance, एनर्जी एटसेट्रा. सो अचीविंग ए वैल्यूएशन ऑफ 1000. आपका बिजनेस 8,000 करोड़ का है, 8300 करोड़. 10% आपने बेच दिया, यू विल गेट 830 करोड़ रुपीज. 50% बेच दिया, यू विल गेट अराउंड 4150 करोड़ रुपीज. नहीं भी बेचा तो 8000 करोड़ के तो आप मालिक हो ही हो. आपकी नेटवर्थ तो बढ़ी हुई है. सो दिस इज द यूनिकॉर्न. अपने इंस्टीट्यूट की मटेरियल में स्टार्टअप इज रेफर्ड टू यूनिकॉर्न only if it qualifies 4-5 condition. It is privately held. Its valuation is reaches 1 billion plus. Basically it resembles, like I just said, some sort of success. It was a new idea, disruptive innovation. It was focused on technology. It is important to note that the valuation of startup may slip below 1 billion. अब कुछ एक valuation 1 billion थे, कुछ वहाँ पे गड़बड़ हुई, कोई फेलियर वाला एक पेटीएम में आजकल कुछ चल रहा है. अभी वैल्यूएशन तो उसकी अच्छी है, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. सो कई बार वैल्यूएशन नीचे भी आ जाते हैं. बायजूस इज वन ऑफ द एग्जांपल. $16 बिलियन, $17 बिलियन की वैल्यूएशन से दे आर नाउ टू अराउंड $1 बिलियन ओनली. सो इफ you can lose the unicorn status also. Unicorn status is just a symbol, nothing else. I don't think इसकी वजह से कुछ एडवांटेज एक्सेट्रा मिलते हैं. बट यस, फॉर इंडस्ट्री फोरम्स, अगर कोई बड़े लेवल की मीटिंग्स हो रही है, यू गेट अ स्पेशल एडवांटेजेस एक्सेट्रा. इंडिया का जो सबसे पहला यूनिकॉर्न था, इट वाज इनमूवी एज पर इंस्टीट्यूट बुक. उड़ान, B2B commerce marketplace, e-commerce marketplace. They achieved the unicorn status in the shortest period of time, around 2 years only. अभी बहुत यूनिकॉर्न बन चुके हैं. इंडिया में फ्लिपकार्ट 17-18 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पे हमारे फाउंडर्स, जो इंडियन फाउंडर्स थे, उन्होंने एग्जिट किया वॉलमार्ट को बेच के. ओला अच्छा चल रहा है. स्नैपडील अच्छा चला था, अभी गिर गया. पेटीएम इज सर्वाइविंग. आई थिंक इट विल सर्वाइव दिस स्टॉक. जोमेटो अच्छा कर रहा है, क्विकर अच्छा कर रहा है, रिन्यू अच्छी कर रही है. उड़ान वी जस्ट डिस्कस, ड्रीम 11 चल ही रहा है. लेंसकार्ट बहुत अच्छा कर रहा है. ओला इलेक्ट्रिक डेफिनेटली गोना डू गुड बिकॉज नाउ they are beyond the definition of startups now. Kiroda ने अच्छा किया, नाइका ऑलरेडी लिस्टेड है. So there are around multiple other startups names and references given. What I will do, I'll separately, इसका कोई नाम नहीं आने वाला है अपने प्रिपरेशन में. I'll separately prepare sort of slide
for all the big startups. I think 4-5 अलग से इसके एक सेशन बना लेंगे. Whosoever want to read about those startups, their success stories, that will cover uh, just for our knowledge sake, etc. India is the third largest ecosystem for startups. So देखो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी थ्योरेटिकल बड़ा क्वेश्चन आया 20 नंबर का, you have to write something, कुछ स्टोरी बना के भी लिखनी पड़ेगी. So right now, India is the third largest ecosystem for startups after US and China. Uh, there have been multiple companies now which are becoming decacorn. So यूनिकॉर्न से भी आगे जो 10 बिलियन वैल्यूएशन अचीव कर सकते हैं. फ्लिपकार्ट है, अपना ओला है, बायजूस पहले था, पेटीएम था. सो देयर कैन बी मल्टीपल कंपनी. आई थिंक आई डोंट नो दुनिया कहाँ जा रही है. सो नाउ वी जनरली आई थिंक 1 बिलियन थोड़ा अच्छा ठीक है. आई थिंक 1 बिलियन डेकाकॉन, दैट्स ओके. सो यूनिकॉर्न, डेकाकॉन, बोथ. आई मीन we'll discuss everything, but looks like that shortly, maybe in few years, as the material says, we will start discussing decacorn. That will become a much bigger sample. Like अब centuries कोई नहीं पूछता, triple century किसने मारी, आने नहीं आओ. So now we are coming to the main chapter, which is a pitch presentation. What is a pitch presentation? आप लोग Shark Tank देखते ही रहते होंगे. So basically, startup की financing को there are multiple forums. Indian Angel Network है. There are many forums wherein occasionally every 3 months, 6 months, they are online platform also. You can just go and put in your idea. गवर्नमेंट की बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जहाँ पे आप अपना आइडिया दे सकते हो. बट अब आइडिया देने के लिए आप पूरा एक पैराग्राफ नहीं लिख सकते. यू हैव टू समराइज इट इन सच अ वे दैट आप उसमें सब कुछ इंक्लूड कर लें इन योर प्रेजेंटेशन ऑफ 20 मिनट्स. सो वो 10-12 मेन चीजें क्या होंगी जिसको आप अपनी पिच प्रेजेंटेशन. पिच मीन्स इधर इट इज अगर आपने गवर्नमेंट में कहीं पे जमा कराई है, जनरली तो ये आपको फिजिकली बुलाएंगे, या फिर शार्क टैंक में आते हैं, उनको आई गेस 3 मिनट मिलते हैं, 5 मिनट मिलते हैं, कईयों को 10 मिनट मिलते हैं. सो ऑन एन एवरेज आई गेस मैंने कुछ एक शोज देखे हैं जहाँ पे 7 मिनट मिले हैं. देयर हैव बीन फ्यू शोज जहाँ पे सिर्फ 5 मिनट मिले हैं. बट एज पर आवर इंस्टीट्यूट इट broadly covering around 20 minutes. But on an average live events में they generally get only around 10 odd minutes. But anyhow, so इसमें करना क्या है? What shall be the main feature? Suppose आप एक स्टार्टअप के फाउंडर है, आपको किसी इन्वेस्टर को या इन्वेस्टर कम्युनिटी को, इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस को, या फिर आप एक शार्क टैंक में जाके आपको अपना प्रेजेंटेशन देना है. What all will you include? चाहे आप पीपीटी दे रहे हो, चाहे आप खड़े होके बोल रहे हो, क्या क्या आप इंक्लूड करेंगे? That's the main question. Why do they want to tell you? Why do institute wants to teach you? Because this is important. आपको आपको पता होना चाहिए कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, किस चीज को एम्फेसाइज करना है, किस चीज को कम एम्फेसाइज करना है. एटलीस्ट आपको पता होना. दिस प्रेजेंटेशन कैन गिव यू इक्विटी. ये आपको पार्टनर ला सकती है, फंडिंग ला सकती है. तो इसके ऊपर मे बी अगर आप नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आप किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करेंगे, आपका काम ही होगा पिच प्रेजेंटेशन बनाना. तो ब्रॉडली ये 11-12 टॉपिक्स अपने इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल के हिसाब से shall be included in a pitch presentation. What are those? So सबसे पहले तो pitch presentation it shall be short, brief, not more than 20 minutes. It shall be explaining to the investors the future prospects of the company and why the investors should be investing in that business, why the investors should be investing in that startup. It shall cover the quick business plan. We'll just discuss what the business plan means in detail. Convincing the investor to put some money into the business. A pitch presentation can be made face to face. It can be online meeting. As I said, it can be deposited under various sort of portals etc. कई जो प्राइवेट फोरम्स हैं उनकी भी ईमेल्स वगैरह हैं, आप उस पर भी भेज सकते हैं. In case it gets shortlisted, you are called for another sessions, etc. What are the some points to be kept in while preparing an effective pitch? Guys, आपको क्या करना है? आप कोई pitch presentation देने नहीं जा रहे हो.
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू आर ए कंसल्टेंट, यू आर एन एडवाइजर, यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट टू द स्टार्टअप इन्वेस्टर। भाई जो स्टार्टअप इन्वेस्टर, उस बंदे को चाहे चलो सब कुछ आता है मान लेते हैं, बट ही इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन अ पैशन एंड आइडिया कि मुझे ये करना है। रितेश अग्रवाल ओयो के फाउंडर को ये था कि भाई मेरे को हर घर को एक होटल में कन्वर्ट करना है, ओला में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है। सेम वे आई थिंक विल गो टू सचिन बिनी बंसल, एक मेरे को ऑनलाइन ईज ऑफ एक्सेस देना है। और भी बहुत तरीके के स्टार्टअप आ रहे हैं। तो स्टार्टअप फाउंडर के पास तो एक अलग ही बड़ा एजेंडा है। वो पीपीटी भी बनाने के लिए बैठ सकता है, बट फिर बिजनेस कौन करेगा? तो पीपीटी जो बंदा बनाएगा जनरली बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर तो ठीक है, बट अगर आप कंपनी के हो, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी ज्वाइन कर सकते हो। यू आर एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, you are preparing but it's other way around. It is the initial stages पर it would be the founder or the because investment banker को आप क्यों पैसे दोगे इतना ज़्यादा? और अगर आपका आइडिया भी इतना छोटा है, कोई आपका आइडिया चुरा के भी लेके जा सकता है। So it generally be one or the other staff members, CA of that founder or entrepreneur, तो ये सारे काम करेगा। मे बी द सीए कैन ऑल्सो ज्वाइन एज एन इक्विटी पार्टनर इन दैट फर्म। इट्स स्टार्टअप है, सैलरी क्या मिलती है भाई आपको? 1% इक्विटी दे रखी है, 5% इक्विटी दे रखी है। यू आर बीइंग ट्रीटेड लाइक अ फाइनेंस ऑफिसर टाइप। तो उसमें एक आपको, और एज्यूम कर लो कि आप स्टार्टअप है, तो आपको क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है, ऐसे समझना है कि आप उसमें एग्जाम में लिख कर क्या होगे। बुलेट पॉइंट है 10-11। मैंने इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही उठाया हुआ है अभी सब कुछ, क्योंकि वहीं का जो आंसर है, आप कुछ भी थ्योरी तो कोई भी लिख के आ जाएगा। दैट थ्योरी माइट ऑल्सो गेट सम मार्क्स, बट प्राइमरली एज वी ऑल नो, सी इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल को वैल्यू देता है। इट्स अ वेरी वेल ड्राफ्टेड, वेल थॉट मटेरियल विच इज गेटिंग प्रिपेयर्ड, विच इज प्रिपेयर्ड बाय द इंस्टीट्यूट बोर्ड ऑफ स्टडीज। सो इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में आपको बताना है ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ, जो भी फाउंडर हैं, बट केयर शैल बी टेकन, आई मीन थोड़ा ही बताना है, ज़्यादा नहीं बताना है, क्योंकि आपके पास यू ओनली हैव 20 मिनट्स। मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट योर बिजनेस, थिंक योरसेल्फ एज एन फाउंडर। आपके बिजनेस का सबसे अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? आपके मेजर माइलस्टोन क्या है? देखो, स्टार्टअप्स आर लाइक आईबीसी केसेस। बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं, बहुत सारे फेल भी हो जाते हैं, कि हमें लगता है लाइक हर दूसरा सीए सोचता होगा कि मैं ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं कि जिससे सारी आईटी ऑटोमेटिक बन जाए। हर बंदा सोचता होगा कि मैं एक बटन दबाऊं, मेरा फाइनेंशियल बन जाए। देयर कैन बी मल्टीपल, ऑडिट हो जाए, ऑडिट ऑब्जर्वेशन, सब चलते ही रहता होगा, बट आपको उसमें जो मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो बताना है। कॉम्पिटिटर भी नीचे आएगा। अगला क्या है, आपको टीम के बारे में बताना है। सो एक बंदा जनरली कुछ नहीं कर सकता, और इवन इफ यू आर गोइंग टू द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर नोज कि 8 ही घंटे होते हैं। आप खुद सीरीज कर रहे हो, आपको पता है, सुबह उठते हैं शाम हो जाती है। नीचे टीम को बहुत जल्दी बनाना पड़ता है। टीम के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, वो सब हम भी आगे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, सोर्स ऑफ फंडिंग एटसेट्रा में। कौन से बंदे क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टर्स आर नॉट ओनली पुटिंग देयर मनी टुवर्ड्स द आइडिया, बट द टीम ऑल्सो। एक बंदा है जो लग के खड़ा हुआ है। कुछ ऐसा नहीं है कि उसको अपने 2-4-5 हम देखते हैं शार्ट टैंक पे, जब कोई आता है और कोई जल्दी बेच देता है अपनी कंपनी 2-3 करोड़ में, उसको बोलते हैं यार ये तो एम्प्लॉय मेंटालिटी है। तो टीम स्ट्रांग होनी चाहिए। बैकग्राउंड ऑफ द प्रमोटर। अब यार प्रमोटर बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, उसको खुद कुछ नहीं पता, उसका कुछ उसने लाइक, मतलब वो दिख जाता है। यू कैन नॉट स्टार्ट अ वेरी बेसिक नेचर ऑफ बिजनेस एट एन एज ऑफ 50। यू मे, बट generally the entrepreneur skill sets are noticed at a very young stage। so 22, 23, 25, 30, 35 तक वो दिख जाता है, कुछ की तो उससे भी पहले दिख जाती है। सो प्रमोटर का बैकग्राउंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस द टीम हैज वर्क टुगेदर इन पास्ट, लाइक फॉर एग्जांपल इन्फोसिस जब बनी, 4-5 लोगों ने साथ में पुरानी कंपनी को छोड़ के बनाया। सेम वे अपनी कोई बड़ी जो ये टेक फर्म्स बनती हैं, ऑडिट फर्म्स बन रही हैं, पुराने साथ में काम किया था, उन्होंने डिसाइड किया एक फर्म बना ली। मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने उठा के 4 लोगों ने अलग अलग कंपनी से छोड़ के एक साथ काम कर स्टार्ट कर लिया, नई फर्म बना ली। सो अगर उन्होंने पहले कोई काम किया है, पहले कुछ डिलीवरी की है, it adds value to your pitch presentation।
You have demonstrated in past. Now you are again together. You have left something behind for something better in future. Another important part is startups, as we just discussed, as the definition also suggests, itself solve a real life problem, some sort of support, itself extend, and convince the investor that your solution, the investor's solution, will solve that problem. For example, I mean, like it's a very old example given in the study material. So Orkut, Facebook, social media, so everyone wants it. मैं खुद करता हूँ, सब लोग करते हैं, साइट पे होते हैं, but there shall be some security features, some innovativeness. So I think Orkut, which was like Google's social media platform, I think Google has come up with various good things now. Facebook is running after them, but anyhow, so Orkut got flopped. तो मेरा खुद का ये मतलब वो जब Facebook आया 2007 के आसपास या जो भी, so then slowly and steadily the Orkut में because of various security reasons etc. It got flopped, and simple and effective advantage uh, feature of the Facebook was that they added security features, they added easy access to the friends etc., and it got sort of successful. Uber, आपको पता है, these are examples I've given from my side. Like Uber ने लोगों की problem solve की, people who do driving etc. One app see multiple restaurants with delivery option. वो Zomato, पेट्रोल की शॉर्टेज होने वाली है, सो ओला इलेक्ट्रिक, ओल्ड कार सेल फ्रॉम होम, बायर जो पुरानी कार खरीदना चाहते हैं उसके लिए कार्स 24, फ्लिपकार्ट, अपडेट, दे ऑल आर यूनिकॉर्न्स, दे ऑल आर बिग. I think these ideas were not thought earlier. So they realized, the founders realized the problem. They knew that in some form or other, through some technological, because of this internet revolution, they were able to find a solution, and their idea was successful. People actually like it. कोई किसी को लगता है कि यार कौन कैब से फोन से गाड़ी खरीदेगा, क्यों ड्राइवर आएंगे, वो सक्सेसफुल हो गया. किसको लगता था कि आपके पूरे एरिया के 200-300 रेस्टोरेंट सब एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगे. हु थॉट कि ऑनलाइन इतनी लोग बाई करेंगे. इलेक्ट्रिक से कभी जब मतलब इवन व्हेन आई वाज यंग, आई वाज थिंकिंग यार पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो कारें कैसे चलेंगी. So an upgrade is a very very major sort of thought. Like we all would continue to study at least till 35-40 years of age. कभी किसी ने एडवांस लर्निंग कर लिया, कभी पीएचडी कर, पीएचडी दे रहे हैं सारे, एंड ग्लोबल कोर्सेज के साथ ऑफलाइन कर सकते हो. You do not need to go to online. You don't need to go physically to the campus, etc. So they were the solutions. So this uniqueness, I mean, I'll just cover. So आपका प्रॉब्लम क्या थी, और convincing the investor that your idea is going to solve the problem is very important. Now the solution. तो आपका जो solution है, आपके solution आपको explain करना है problem के साथ साथ कि हमने ये ऐसा किया which got successful. For example, इंडिया में लोग अगर आपको ऑनलाइन खरीदना है सामान, many of the people, many of the house ladies etc., they were earlier not using, back then 2007-8, but not using कैश ऑन डिलीवरी. आया, थोड़ा सा ट्रस्ट किया, थोड़ा सा देखो रिस्क तो लेना पड़ता है. सेम वे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ठीक किया. अगर आप एक पूरे एक सिटी में एड्रेस कर रहे हैं, तो आपको बेसिस दी वेरियस प्रिडिक्टिव मॉडल्स, क्या सामान कब बिकेगा, क्या कैसे आप उसको जल्दी डिलीवर कर पाओगे, तो सप्लायर से एंगेज करके कुछ अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनाना, कैसे सामान उठेगा, कैसे सामान निकलेगा, कुछ वेयर हाउसिंग बनवाना. सो ये सारी चीज़ें करके फ्लिपकार्ट वॉज सक्सेसफुल. आपकी स्लाइड में मार्केटिंग सेल्स होनी चाहिए. आप कुछ भी कर रहे हो, इवन आप एक एजुकेशनल टीचर हो, अगर आप एक फोन, कुछ भी आप एनी लाइन ऑफ बिजनेस कर लीजिए, यू विल हैव टू रीच टू द कस्टमर. हाउ विल कस्टमर कम टू नो? चाहे वो पेपर हो, एड हो, एडवर्टाइजमेंट हो, ऑनलाइन एड हो, टीवी ब्रॉडकास्टिंग हो, माउथ वर्ड ऑफ माउथ हो, कनेक्शंस हो, आप तो आपकी आप मार्केटिंग इज एज गुड एज प्रोड्यूसिंग. तो एक एंटरप्रेन्योर ने एक आइडिया से उसको बना लिया. ओला इलेक्ट्रिक बन गया, अगर वो बिकेगा ही नहीं तो फिर कैसे चलेगा. सो फ्लिपकार्ट बन गया, अगर उसको यूज ही नहीं करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में डिस्काउंट देने पड़ते हैं. फॉर लास्ट 1 मंथ वी आर यूजिंग जेप्टो. अब ब्लिंकिट चल गया था, वो जेप्टो है, वो स्टार्टिंग में भी हैवी डिस्काउंट दे रहा है, फ्री डिलीवरी दे रहा है.
तो सेम थिंग ब्लिंकिट पे अब वो चार्ज लेता है, जेप्टो भी फ्री दे रहा है, लोगों को आदत डाल रहे हैं। तो आपकी मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। प्रोजेक्शंस और माइलस्टोन, यू विल हैव टू कीप समथिंग इन टारगेट। और अगर आप इन्वेस्टर को कुछ दोगे, वो बंदा आज आपकी कंपनी में इक्विटी लगाने के लिए आ रहा है, तो आपको उसको फाइनेंशियल प्रोजेक्शन देनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि आपका क्या थॉट ऑफ प्लान है, हाउ डू यू वांट टू अचीव सक्सेस। तो 3-4 तरीके के आपको फाइनेंशियल्स, जनरली एक्सटेंडेड फाइनेंशियल्स ही हैं, हर जगह बनाने पड़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। पहले अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो तो हर महीने में किस महीने में कैसे कैसे ग्रो होगा, थोड़ा आप बड़े हो गए तो क्वार्टर कैसे होगा, बोर्ड मीटिंग जनरली क्वार्टरली होती हैं। उसके बाद अगर आप और भी ज़्यादा बड़े हो चुके तो 3-4 साल के बाद ईयरली कैसे चलेगा आपका, क्योंकि if you are trying to expand to another state, in 1 month you will not be able to achieve anything. It shall be a 6 months to a year project. So if you want to, achieve breakthrough in some overseas market, even might be a 2 years job from now. पहले आपको प्रेजेंस बनाना पड़ेगा, कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, इक्विटी भी चाहिए होगी, कैश भी चाहिए होगा। कैश फ्लो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना कैश आपको आ रहा है, क्या इक्विटी की क्या प्लान है, कितनी यूटिलाइज हो रही है। अभी आप कैश बर्न कर रहे हो इनिशियल बिजनेस में, तो आप कैश बर्न ही करोगे क्योंकि मार्केटिंग स्पेंड इतना ज़्यादा होगा, आपका ऑफिस के जो एडमिन कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा होगी। बैलेंस शीट में आपको ये दिखाना, मतलब प्रोजेक्शंस में पता होना चाहिए कि आपकी सोर्स। अब ऐसा तो नहीं है आपने एक इन्वेस्टर को एक दिया, दूसरे को दूसरा दे दिया। यू विल हैव टू टेल हिम कि भैया यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट कि मैं लोन भी नहीं ले रहा हूँ। अगर लोन लिया तो पता होना चाहिए कि लोन भी मेरे बिजनेस मॉडल में बैठ रहा है। अगर आपने अपना पैसा लगाया था, वो कितना लगाया था, इट हैज टू बी बैलेंस शीट इन द रियल पिक्चर। P&L और व्हाट डू यू कॉल इट, कैश फ्लो तो ठीक है, वो रनिंग चल रहे हैं, बट ऑन अ पर्टिकुलर पोजीशन डेट कहीं कोई बड़ी लायबिलिटी तो नहीं खड़ी हुई, कहीं आपने अपने आप को कुछ अलग तरीके के कुछ और इंस्ट्रूमेंट तो नहीं दे रखे हैं। बिकॉज यू वर द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो पीछे से। आपके पास बैंक में पैसा है भी या नहीं है, आपका जो सप्लायर है जिससे आपने रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा, इनपुट खरीदा या जो भी किया है, उसके अगेंस्ट कितना पेमेंट बचा हुआ है। अपने बुक्स पे पैसा दिखा दिया 100 करोड़, 200 करोड़ के आपके क्रेडिटर्स खड़े हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको बैलेंस शीट इज अ ट्रू पिक्चर हैज टू बी यू नो ब्रॉड समरी फॉर्म में आपको ये कवर करना पड़ेगा। तो नेट इफ आई कवर दिस प्रोजेक्शन अगेन, तो आपको 3 से 5 से 7 साल के, 1-2 साल की डिटेल्ड, क्योंकि उसमें अभी आप ग्रो कर रहे हैं, और उसके बाद आपको कैसे कैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, कैसे कैसे आपका एक्सपेंशन होगा, और इफ एक्सपेंशन नहीं होगा विद इन द सेम सिटी आपके कस्टमर एक्विजिशन होंगे, वो सब आपको ब्रॉड एक फाइनेंशियल मॉडल बनाना पड़ेगा। आई विल प्रिपेयर फुल फ्लेज वीडियो ऑन द फाइनेंशियल मॉडल, कैसे कैसे बनता है, उसमें वेरियस एजम्पशंस आप कैसे डालोगे, टैक्स की क्या विजिबिलिटी लोगे, आपकी हर तरीके का आप देयर कैन बी मल्टीपल ऑप्शंस। एक बेस केस होगा, एक एडवांस केस होगा, एक ऑप्टिमिस्टिक केस होगा, वो सब चीज़ें हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे। बट नेट आपको प्रोजेक्शंस भी आपके पिच प्रेजेंटेशन में रखनी पड़ेगी। कोई कंपटीशन तो नहीं है, लाइक अब ब्लिंकिट का कंपटीशन आ गया जेप्टो, और सेम वे फ्लिपकार्ट का कंपटीशन अमेजन इंडिया में आ गया था। पहले ईबे वगैरह होते थे, ओला इलेक्ट्रिक, सब लोग इलेक्ट्रिक बना रहे हैं। तो फिर आपको बताना पड़ेगा हाउ इज योर बिजनेस मॉडल यूनिक एंड हाउ डू यू वांट टू कम्पीट विद द कॉम्पिटिटर्स। अदरवाइज तो फिर आप स्टार्टअप का आपका कंसेप्ट ही नहीं है, बिकॉज दिस आइडिया इज, इफ द आइडिया इज नॉट न्यू, देन आई डोंट नो हाउ कैन यू कॉल योरसेल्फ ए फुल फ्लेज इनोवेटिव स्टार्टअप देन। फिर तो आप एक बिजनेस मॉडल को रेप्लिकेट कर रहे हो। देयर कैन बी वेरियस चैलेंजेस इन दैट आल्सो, बट then that has to be clarified in advance. if 10 लोग एक तरीके का ही काम कर रहे हैं, तो वो पता होना चाहिए। आपको अपने कंपटीशन को ठीक से एनालिसिस करना पड़ेगा। हाउ द प्रोडक्ट और सर्विस आर डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर in case it's not a unique idea. Most important item is now the business model. तो बिजनेस मॉडल क्या होता है? इट्स अ वेरी यूनिक टर्म, बट दैट इज व्हाट यू हैव टू नो। कोई भी आपसे पूछेगा, आपसे आपसे इंटरव्यू पूछेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द बिजनेस मॉडल। तो बिजनेस मॉडल इज सम टोटल ऑफ एवरीथिंग।
denoting the core aspects of a business, including इसका पर्पस क्या है, टारगेट कस्टमर क्या होंगे, हमारी ऑफरिंग क्या है, एक्चुअली व्हाट आर वी ट्राइंग टू सेल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटजी क्या है हमारी, ऑपरेशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, सोर्सिंग कहाँ से लेंगे. सो बिजनेस मॉडल मीन्स मॉडल इज अ ब्रॉड फ्रेमवर्क. मॉडल लाइक एक लेआउट, आप घर बनाते हो तो उसका एक मॉडल बना लेते हो, आप कोई भी फैक्ट्री लगा रहे हो तो उसका मॉडल बनाते हो. सो स्टार्ट से लेके एंड तक. सो फ्रॉम द कोर एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस इंक्लूडिंग पर्पस क्या है आपका, आपके प्रोसेस कैसे होंगे. अगर सपोज आप एक आप एक मोबाइल बनाते हो या फिर आप एक ईंट भी बनाते हो, तो क्या प्रोसेस है आपका उसका, क्योंकि प्रोसेस जब आप बताओगे तभी पता चलेगा कि उसमें कॉस्टिंग कितनी आने वाली है, आपके टारगेट कस्टमर्स कौन होने वाले हैं. यू हैव लाइक अपग्रेड के टारगेट कस्टमर एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हैं, यंग एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, और advanced professionals who want to do PhD or very sort of sort of advanced levels of management studies etc. आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको क्या चाहिए, आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. आपने एक बीपीओ खोल दिया, मैं यूएस का काम ला के इंडिया में करूंगा, भाई इतने बंदे मिलेंगे आपको. यू नीड टू वेरी साउंड एचआर पर्सोनल टू गेट यू द मैन पावर. हर चीज पैसे से नहीं होती सिर्फ. यू नीड टू हैव आपका आपका लोकेशन क्या होने वाला है. सो आपकी ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस क्या होने वाली है, क्या चीज़ आप, अगर आपने डिसाइड ही कर लिया कि मैं लॉस पे बेचूंगा या प्रॉफिट पे बेचूंगा या क्या करने वाला हूँ मैं. ऑपरेशन पॉलिसीज भी होनी चाहिए. कल्चर चलो ठीक है, बट कल्चर भी ये कल्चर इज अ वेरी वास्ट एंड विल डिस्कस अगेन सम टाइम. सो बेसिकली आपके आइडिया से लेके आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए जो सारी चीज़ें चाहिए, बट यू हैव टू एक्सप्लेन राइट इन टर्म्स. सो द कोर एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस इंक्लूडिंग पर्पस, प्रोसेस, कस्टमर्स, ऑफरिंग्स, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी इनपुट रिक्वायरमेंट्स, आपकी सोर्सिंग, आपकी ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, दैट ऑल विल कवर योर मॉडल. मॉडल में लास्ट में आपको अपना प्रॉफिट भी दिखाना पड़ेगा आफ्टर आफ्टर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करके. फर्दर एज पर द इन्वेस्टोपीडिया क्या कहते हैं, बिजनेस मॉडल इज द वे इन विच कंपनी जनरेट्स रेवेन्यू. बेसिकली इन विच में सब कुछ इसने कवर कर लिया जो हमने ऊपर डिस्कस किया था. सो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा आपका, नीचे की चीजें चलो बिजनेस मॉडल में नहीं भी आती, मान लेते हैं वो बैलेंस शीट मैनेजमेंट सबका काम होता है, बट आप अपना सामान खरीद के बेच बना के डेवलप करके उसको बेच के जो ग्रॉस प्रॉफिट कमाने वाले हो, दैट इज ऑल दोज प्रोसेस एक्टिविटीज विल गेट कवर्ड इन योर बिजनेस मॉडल. सो लाइक फॉर एग्जांपल आपने कोई एग्जांपल दिया हुआ है. So there were two companies which were in the business of renting CDs. तो वो इन्होंने एक अपना पहले यही होता था, आप लोगों को नहीं पता, आप लोग यंग हो, बट जब हमारा हमारे टाइम में सीडियाँ हम लेके आते थे दुकान से, वीसीआर चलते थे, तो वो सीडी लेके आते थे, उसका जो भी किराया होता था 30 रुपये 40 रुपये पर सीडी, एक नाइट के लिए रखना है. कई बार ऐसा होता था कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे एक सीडी, एक हमने 9 से 12 चला लिया, 12 बजे एनी हो. सो पहले फिजिकल सीडियाँ लेके आते थे, फिजिकल डीवीडी लेके आते थे. अब नया मॉडल आ गया, ऑनलाइन रेंटिंग होती है. तो इस इंस्टीट्यूट की बुक्स में ये एग्जाम्पल दिखाया हुआ है. तो इससे क्या होता है, ऑनलाइन रेंटिंग में आपको व्हाट डू कॉल इट, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस मिल जाता है, नेटफ्लिक्स वगैरह. ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड लार्ज स्केल आपका कॉस्टिंग कम हो जाता है, बिकॉज यू कैन रीच टू मल्टीपल, आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपका मार्जिन बढ़ सकता है. डेफिनेटली उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कॉस्ट आती है, बट टचवुड टेलीकॉम और टेक स्पेस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो बहुत कम है, तो उससे आपके मार्जिन बढ़ जाते हैं. सो देयर इज अ चेंज इन द बिजनेस मॉडल. फॉर एग्जांपल, इट्स अ लाइव एग्जांपल ऑफ एजुकेशनल इंडस्ट्री. पहले कभी जब टीचिंग होती थी, 2008-9 से पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैंने पढ़ाई की थी, तो सब कुछ फिजिकली था. देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग और सैटेलाइट टीचिंग. 2012 में सैटेलाइट कोचिंग्स आई, 2013-14 तक फिर आपके थोड़ा सा ऑनलाइन भी आने लग गया. आजकल तो आई थिंक 70-80% मार्केट इज बीइंग डिनोमिनेटेड और कैप्चर्ड बाय द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, etc.
तो ये सारे आपके बिजनेस मॉडल चेंज होते रहते हैं। ग्रोसरी स्टोर, अब अगर आप कोई बोलेगा कि मैं स्टोर खोल रहा हूँ, उससे अच्छा तो कोई बंदा अपना गोदाम खोल ले, whatever. सो हर चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं. Not one formula will fit all. There can be few things which can fit. There are some sizes which fits all, but not everything will fit all the business model. थोड़ा अलग होता है, but you need to know what is your business model. अब आप कोई भी चीज करके आप बोलोगे मैं बुक पब्लिश करने जा रहा हूँ, आपको देखना पड़ेगा यार कि बुक पब्लिश करना है, डिजिटल करना है, ऑनलाइन करना है, एंड ऑल दैट स्टफ. एंड द लास्ट एस्पेक्ट इज द फाइनेंसिंग. तो आपके फाइनेंसिंग मतलब आपको कितना पैसा चाहिए. आपने पूरा पिच बना के भेज दिया इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर भी खुश, तालियां भी बज गई, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, कॉम्पिटिटर भी मैनेज कर लिया आपने से, बिजनेस क्या कहते हैं, प्रोजेक्शंस भी मैनेज कर ली, प्रॉब्लम भी थी, सॉल्यूशन भी था, टीम भी अच्छी है, इंट्रोडक्शन भी अच्छा है, आपने प्रेजेंटेशन अपनी खत्म कर दी, क्या होगा. तो वो प्रेजेंटेशन अगर आप इनो और अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है फिर तो ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन पूछ के आपसे ही पूछ लिया. बट आइडियली आपको लास्ट में अपनी पिच प्रेजेंटेशन में आपको ये बताना पड़ेगा कि हाउ मच money has been used in the business and how much money you want more. What is it that you have accomplished from the existing equity? What is the further funding requirement? How much stake do you want to sell? And how you intend to use that money? आप ये नहीं बोल रहे थे पैसा लेके मैं अपने आप को सैलरी दे दूंगा. So these were the salient features of a pitch presentation. मैं आपको एक दो pitch presentation बना के को अलग से दोबारा I will just show it to you. अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे modes of financing for startups. So basically bootstrapping, it's a very interesting concept. आपको वर्ड की डेफिनेशन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, विल जस्ट डिस्कस इन डिटेल. वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स क्या होते हैं, दैट विल डिस्कस इन डिटेल. Startups cannot be funded through PE. PE is a large, PE comes generally into the picture for large players, so that is not required to be discussed, but I just wanted to, I have written it specifically so that you know that this is not part of startup. So guys, good. I mean, I continue to uh, engage with you on learning. We will have various sessions on the practical topics. I know CA पेपर आप थ्योरी पढ़ के पास नहीं कर सकते, because 60, 70 or I'll say 80% of the paper would be practical. Having said, अगर आपको थ्योरी के कंसेप्ट इतने अच्छे नहीं आएंगे, it will be difficult for you guys or for all of us to pass the exam. To the point checking होती है. अगर आपके थ्योरी के कंसेप्ट अच्छे हैं, then only you will be able to do the what do you call it, the practicals in a much better way. Practical आपको तभी practical याद नहीं हो सकता, practical आपको समझ के करना पड़ता है, और समझने के लिए थ्योरी बहुत जरूरी होती है. we'll again discuss. I have started from broad structure, क्योंकि मैं अभी आपको वैल्यूएशन पढ़ा दूँ. अभी आपको वैल्यूएशन में पहले पिच तो पता ही नहीं है, वैल्यूएशन कैसे आएगी. तो हम एक लाइन से, अब मैं आपको म्यूचुअल फंड बता दूँ, अभी पैसे तो आ जाएं पहले, तो उसको हम एफएक्स कर दें. पहले बिजनेस सेटअप करें, तभी तो एफएक्स की जरूरत पड़ेगी. कैपिटल बजटिंग कर ले रहे, बिजनेस थोड़ा बड़ा कर लो. तो मैं लाइन से अपने हिसाब से चल रहा हूँ. दिस इज माई एश्योरेंस दैट ये 15 चैप्टर हैं. हमने डिस्कस किया कि हमें 60 दिन में कवर करने. कुछ चैप्टर 1-2 दिन के होंगे, कुछ चैप्टर 5-6 दिन के भी होंगे. विल इंश्योर दैट वी प्रैक्टिस ऑल द न्यूमेरिकल ऑफ द स्टडी मटेरियल. 5-6 हर टॉपिक के मैं अपने प्रैक्टिकल बनाऊंगा, जिसमें सारे कंसेप्ट, सारी थ्योरी आ जाएगी. डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे, लाइव सेशंस करेंगे विद एंगेजिंग पार्टिसिपेंट्स. चलो, ऑल माय वेरी बेस्ट. लुक फॉरवर्ड. Target your exams. Study hard. See you soon in the next video. Thank you.